Hi everyone and welcome to my channel. This is Harshita and I will be now a third year student at National Law University Delhi. I am also an Aditya Birla Scholar and the year which I gave A-Lit in was 2024 wherein I secured an All India rank 5, and this channel is basically the space for all the ambitious people who also want to achieve the top things but also want to enjoy their lives fully. So, if that's your vibe, make sure to check out my channel. Today, I am gonna be talking to you all about college, things that nobody talks about, and I wanna open up with you guys because I've talked to some of you, and there are quite a lot of myths around top law schools. There were some things that I thought would be a certain way, and then they turned out to be some other way. And I have learned so much about myself in the last 2 years here at this college. I have learned so much about other people in this college, and yeah, let's have a chit chat about it. I have my coffee right here. For those of you who know me, you know how much I love coffee. It's my constant, and I have it right here with me. So grab your snacks, grab your beverage, and let's get started. Okay, so when I was preparing for CLAT and A-Lit, I used to romanticize my college life so much that once I get into the college, things will all be sorted. Also, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई जेई दे रहा होता है तो वंस दे गेट इनटू आईआईटी तो सब बोलते हैं कि यार अब तो दिस इज़ एन आईआईटी स्टूडेंट, सब कुछ सॉर्टेड है. And once you are in IIT, you also get that recognition from people, which I don't think you get if you are even in a top NLU. I am from Delhi NCR. When I tell people I am from NLU Delhi, they confuse it with DU, which, yeah, but so what I mean is कि मुझे ऐसा लगता था कि एक बार मेरा NLU हो गया, टॉप NLU हो जाएगा, तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है, फिर तो मतलब बस वहाँ जाना है, मस्त लाइफ होगी. ऑफ कोर्स एकेडमिक्स वगैरह होंगे बट एकदम थ्राइव, सब लोग थ्राइव कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज अब तो क्लैट एलिट क्लियर हो चुका है एंड स्टफ लाइक दैट. बट इट्स so far from truth. I think there is more mental toll when you are in college compared to when I was personally preparing for CLAT or A-Lit. I actually think I've managed my mental health very well when I was preparing for competitive exam, because when I hear my friend's story, for example, when they talk about how much they are going through when they were preparing for CLAT and A-Lit, I sometimes feel I've done a good job there. So if you feel like I should make a video around mental health of aspirants, please let me know, because I think that's quite an important topic and I am qualified to talk about that. Yeah, but coming back to college, when so तुम्हारा जब फर्स्ट वीक होता है ना कॉलेज में, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है. बिकॉज आई रिमेंबर जब हमारा फर्स्ट वीक था ना कॉलेज में, सीनियर्स पे ऐसे देख के बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी तो फ्रेशर्स आए हैं. और लास्ट ईयर जब हमारे जूनियर्स आए थे तो हम भी यही सोचते थे कि चलो अभी तो फ्रेशर्स आए हैं, अभी तो मस्ती है. तो पहले वीक इट इज़ लाइक सो गुड, बिकॉज तुम बस अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे होते हो, इतना काम भी नहीं मिलता. बट हाँ, फिर तुम्हें जब काम मिलने लगता है तो तुम्हें लगता है कि शिट यार, मतलब एक दिन में मुझे इतनी रीडिंग्स करनी है. और बिकॉज ये स्पेस ही ऐसा है जहाँ पर सब लोग टॉपर्स, हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स, ऑल राउंडर्स, इंडिया टॉपर्स, ऐसे लोग आए होते हैं, तो हर कोई कर रहा होता है ये सब. और पता है हमारे बैच के साथ तो पर्सनली ऐसा था कि हम लोग इतना लाइब्रेरी में बैठते थे स्टार्ट में कि हमारे सीनियर्स ऐसे बोलते थे दिस बैच इज़ मैरिड टू द लाइब्रेरी, और हमें हमारे जूनियर्स के लिए यही लगा था. तो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक इज़ अमेजिंग. तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ हैंग आउट कर रहे होते हो, तुम लोग इतनी मस्ती कर रहे होते हो, तुम लोग नए फ्रेंड्स बना रहे होते हो, स्पेशली इफ़ यू आर समवन एक्सट्रोवर्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आई लव टॉकिंग टू पीपल, तो मेरे लिए तो फर्स्ट वीक ऐसा था कि मज़े ही मज़े थे सिर्फ. फिर हमें रीडिंग्स मिलने लगी, काम मिलने लगा, तो लग रहा था कि शिट यार, मतलब अब चीज़ें थोड़ी सी रियलिस्टिक हो गई है कि यू आर एट NLU Delhi, सो यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. मेरा घर ना कॉलेज से थ्रू मेट्रो लाइक हार्डली 90 मिनट्स डिस्टेंस पे है. और सेकेंड वीक के आसपास मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि कब
कॉलेज ख़त्म होगा और कब मैं फ्राइडे को वीकेंड पे अपने घर जा पाऊँगी, बिकॉज़ इट सीम्ड सो मच। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार दिस दिस व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर। मैंने ऐसे 1.5 साल में किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गई, मैं अपने फ्रेंड्स जहाँ पे मस्ती कर रहे थे मैं वो नहीं कर रही थी। इज़ दिस द प्लेस आई हैव डन दैट फॉर? एंड I have seen my almost all my friends cry for their home during वो first month वाला phase, because it is hard. Home is like your comfort. Home is like center of your heart. But when you go out, when there is no escape, तुम्हें सुबह से रात तक एक कॉलेज में ही रहना है, तुम्हें सुबह से रात तक सेम लोगों की शक्ल बार बार देखनी है. Eventually you get used to it, but in the start it's pretty hard. And if you are someone who's just joined college or who is about to join college, please know that this is something happening with everyone. You should not have ये imposter syndrome कि I don't belong here, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है. एंड हाँ, तो मेरे साथ भी हो रहा था और मैंने पूरे ऐसे वीक वेट किया कि कब वीकेंड आएगा, मेरे को बस घर जाना है. और शुरू में पता है असाइनमेंट्स मतलब तुम्हें थोड़े फ़न भी मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हमें सोशियो का असाइनमेंट मिलता था कि यार ये मूवी देखकर उसके बारे में कुछ लिखना है, ये सब तो फिर भी ठीक था. फिर धीरे धीरे तुम्हारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते जैसे कि आई रिमेंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आया था और जब हमारे एक्चुअल सब्जेक्ट्स आने लगे थे जिनमें एक्चुअली तुम्हें प्रॉपर रीडिंग्स करके जाना पड़ता था. फॉर एग्जांपल मेरे लिए फर्स्ट सेमेस्टर में HLCD विच इज़ लाइक लीगल हिस्ट्री, वो वाला सब्जेक्ट था. मुझे लगता था कि यार ये सब्जेक्ट क्यों है. तो अकेडमिक्स इज़ वन पार्ट, दिस इज़ ऑल अकेडमिक्स. बट तुम्हें पता है अकेडमिक्स भी हार्ड इसीलिए लगने लगते हैं बिकॉज देयर इज़ सो मच एल्स गोइंग अराउंड यू. Friendship issues. I have talked to so many people in my batch, in senior batches, in junior batches. Everyone's had gone through some friendship drama or the other. And उसमें पता है किसी की गलती भी नहीं होती बिकॉज ये होता है कि यार सब लोग अपनी लाइफ फिगर आउट कर रहे होते हैं और पहली बार तुम घर से बाहर गए हो, तुम लोगों के साथ रहना सीखते हो, तुम बाउंड्रीज सीखते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ सीखते हो, तुम अपने नॉन नेगोशिएबल्स, दूसरों के नॉन नेगोशिएबल्स, अपने पर्सनल स्पेस से बाहर आकर एक कलेक्टिव स्पेस बनाना स्टार्ट करते हो. और बहुत ड्रामा होता है. मतलब देर इज़ सो मच दैट गोज़ ऑन. मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि इट इज़ सो मच मेंटल टोल ऑन समवन बिकॉज बहुत सारे लोग हैं भी तो तुम्हारे आसपास तुम्हें जज करने के लिए. अगर तुम्हारा कोई फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ है तो तुम लोगों से ज़्यादा कंसर्न ना बाकी लोग होते हैं पूछने के लिए कि What happened? Why not sitting with them? Why not eating with them? Did something happen between you guys? They were saying this about you. They were saying that about you. एंड तुम सुबह से रात तक उसी स्पेस में हो और अब तुम यही चीज़ें सुन रहे हो. और इसके अलावा तुम अपने एकेडमिक्स पे स्टॉप नहीं लगा सकते बिकॉज एकेडमिक्स तो चलते रह रहे हैं ना. मेरे एग्ज़ाम्स और मेरी डेडलाइंस और मेरे प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ी पता है मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो वो तो चलते ही जा रहे हैं, तो वो तो अलग ही चल रहा है. और अब मुझे इस सब को इस चीज़ से भी हैंडल करना है कि मुझे होम सिकनेस ना हो. ये भी देखना है कि यार मेरे फ्रेंडशिप ड्रामा जो हो रहा है वो सही हो. ये भी देखना है कि लोगों को क्या आंसर देना है. एंड इट्स टू मच. एंड यू हील इनफ टू नो दैट let people talk whatever, but you are also human enough that these things affect you to some extent. And through this you learn so much. For example, मेरे semester 4 में कुछ चीज़ें हुई थी जिसके बाद मुझे बहुत कुछ समझ आया. This really is how college teaches you things. This probably is what adulting is. Academics भी यार ऐसा नहीं होता कि ना, for example अगर तुम एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले सही से पढ़ने लग जाओ ना तो तुम्हारे एकेडमिक्स में ठीक मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में. बट बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है तो तुम्हें पता नहीं होता कि मैं इसको बैलेंस कैसे करूँ. बहुत हार्ड हो जाता है ये सब चीज़ करना. और फ्रेंडशिप इश्यूज़, पीपल हैव रिलेशनशिप इश्यूज़. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गो थ्रू सो मच इन द लास्ट 2 years. Their breakups, things that they've gone through is like I genuinely would want to hug them and tell them कि यार हो जाएगी चीज़ सही. And it's a lot of drama. मतलब
सबकी लाइफ में ना कुछ चल रहा होता है, सबकी लाइफ के अराउंड र्यूमर्स चल रहे होते हैं। और तुम्हें लगता है कि अब तुम कॉलेज में आ गए, और मुझे तो ऐसा लगता था कि यार NLU दिल्ली में, मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं, बहुत ही गलत लगता था मुझे, बट मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ यू आर गुड इन अकेडमिक्स एंड ऑल, तो तुम्हारी पर्सनालिटी भी थोड़ी उस तरीके से डेवलप्ड होगी, तो यहाँ पर आकर ऐसा लाइक वो स्कूल ड्रामा नहीं होगा। बट ओ माई गॉड, आई वाज सो रॉन्ग, बिकॉज द र्यूमर्स हियर आर इनसेन। मुझे भी मेरे बारे में ऐसी चीज़ें पता चलती है जो मुझे ही नहीं पता था। मुझे किसी ने आकर बताया हो कि दे वर सेइंग दिस अबाउट यू, सो इज़ दिस हैपनिंग इन योर लाइफ ब्रो, मतलब इट इज़ एक्चुअली इनसेन। मैंने लोगों को ऐसी र्यूमर्स के बारे में बात करते हुए सुना है जो कि बिल्कुल फॉल्स होती है, एंड इफ़ यू स्टेप इन टू से दिस इज़ नॉट ट्रू, दे विल गेट टू यू, and that is why it's best to avoid drama. I am so fine being misunderstood. Do you think people don't talk about me, or people don't talk about them or anyone? For example, अगर मेरा भी YouTube चैनल भी है ना, so I actually know this. तो मतलब there are people who've talked about this as well. But do you think I care? Because it genuinely does not matter. People project their own insecurities onto others. What do you hate in anyone else? Things that you want to show to the world but you are not able to. Someone who judges someone else wearing makeup is the person who'd want to wear makeup but they think कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि वो नहीं पहन सकते. फॉर एग्जाम्पल वो फैमिली प्रेशर, मतलब दिस इज़ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल, बट यू गेट वॉट आई मीन, राइट? एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू हेट समवन फॉर समथिंग, दैट इज़ अ बिग रेवलेशन टू योर इनर साइड, कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या सप्रेस कर रही हूँ एंड स्टफ लाइक दैट. सो लेट हुएवर हेट, हु केयर्स एनी वेज. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता भी नहीं चला मेरे 2 साल इस कॉलेज में कैसे निकल गए, एंड द नेक्स्ट 3 years विल ऑल्सो पास बाय, एंड देन वी विल ऑल बी वर्किंग इन डिफरेंट वर्क प्लेसेज. एंड आई वॉन्ट माई कॉलेज टू बी फुल ऑफ गुड मेमोरीज. आई वॉन्ट माई कॉलेज to be a period that I remember with so much love and so much gratitude, कि मैंने वो सब किया जो मुझे करना था. It doesn't matter who says what. So that is another tip that you can take with yourself if you're going to college. And if you want like detailed videos on any of these ideas, I will try to make one. Please leave them in the comments. And yeah, we are also a 400 plus family now, and I'm so grateful to each one of you. बट येस यार, मैं ना तुम लोगों से जेन्युइनली ऐसे बात करने लग जाती हूँ एज इफ़ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस. बट कॉलेज का हार्डेस्ट पार्ट एकेडमिक्स नहीं होता है, इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. कि इफ़ यू आर अबाउट टू जॉइन कॉलेज नाउ, और इफ़ यू फील कि यार लाइफ कैसी होती होगी NLU दिल्ली, NLS, because I have friends in NLS and in NUJS, NLUJ, MNLU, HNLU. We all were preparing CLAT or ALET के लिए साथ में. Now we are all at different places, but touch wood, we are in touch with each other, and we talk about these things all the time, that we are so grateful that we found each other before this college life began, because now we really need each other. Having friends outside college is such a privilege, because it reminds you that life is not just limited to this space. Life is so much more beyond this, because पता है जब मैं 1 वीक के बाद लाइक फर्स्ट सेकेंड वीक था और उसके बाद मैं वीकेंड पे घर जा रही थी, तो मैं जब कैंपस के बाहर आई और मैंने व्हीकल्स देखे, तब मुझे लगा ओ राइट, देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दिस कैंपस. सो कैंपस समटाइम्स ईट्स यू इन अ वे दैट यू फील दिस इज़ ऑल दैट माई लाइफ इज़. बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो. Develop some hobbies, some skills outside college that reminds you of the life beyond campus, because it is so helpful, and it is like a reminder कि life exists beyond this place. And there is so much drama that goes on in college. Everyone is judging everyone is spreading rumors about everyone, because this is the age where people are also dealing with their insecurities, right? People are also dealing with so much, and they also need different forms of escape. So you decide for yourself what kind of escape you would want. Would it be putting your energy into something creative, your energy into something you'd always want to do, or putting in your energy into worrying or stressing or hating on others? It's up to you. College is going to be a chapter in your lives.
it has been one in mine, and I am so looking forward to see what third year holds ahead of me. And yeah, I mean, I just wanted to have like a chit chat with you guys about how college really is. And it's very hard to like consolidate all these ideas in a video, in like a 15-minute video or something. And that is why I want you guys to let me know what do you want to know about college. Let me know what do you want to know about CLAT lit preparation, or just wellness or life in general, and we can go ahead with that. I hope you loved the video. My intention with this video was to just have a conversation with you guys that ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे कॉलेज मिलने के बाद. इफ़ एनीथिंग और प्रॉब्लम्स आती है, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. You learn things, you unlearn things, you learn things, you unlearn things. And yes, as usual, I love making these videos. I love talking to you guys. And thank you so much once again for subscribing, liking, staying here. It means a lot to me. And I hope you all have the bestest day ahead. Bye bye. Take care.